Hallelujah. Brother Niketan, how are you? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Great, great, great. So many people now. Yeah. How are you, Brother Niketan? Sir, I'm blessed by the grace of God. Can you hear me? Huh? Can you hear my voice? Yes, yes, yes. Yes. Okay, good. Amen. And then let's pray and Yes. God to speak to us. Amen. Open our eyes that we may see wondrous things out of the word. Praise God. Amen. Shall we close our eyes? Yes. Father, we thank you for this day. Thank you for giving us this time to come together on this fresh morning. Yes, Father. You may continue to glorify your name, continue to speak. As we are meditating on Revelation, we pray that we may open the eyes Yes, Lord. and see that we may see the wondrous things that you have. Yes. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Wow. Let's read Revelation first chapter, verse 12. और आइए हम इस समय में प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। लाइट लगा दो। It says, and I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवते देखी। Then verse 13 says, and of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and gin about the paps with a golden girdle. और उन देवतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। Beloved, here we read about the heavenly vision and the resurrected Jesus who appeared to John. प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना को एक स्वर्ग से प्रकाशन मिला और वो उस पर प्रकट किया गया। And then he is seeing one like Son of Man. और एक जो प्रकाश था वो परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र जैसा था। To read from the book of Daniel, 7th chapter, verse 9 onwards, we see the same Son of Man appearing there to Daniel. और दानियल की पुस्तक में भी यदि हम 7वें अध्याय में पढ़ना शुरू करेंगे तो उसी प्रकार का एक मनुष्य दानियल के सम्मुख भी प्रकट किया गया। So they have related and then they have seen Christ, whether it is New Testament or Old Testament. जब उन्होंने इन दोनों को मिलाया तो उन्होंने देखा कि ये नया नियम है या ये पुराना नियम है। Because Jesus was present even before the New Testament.
क्योंकि नए नियम से पहले भी यीशु मसीह प्रकट रूप में था। Jesus is not an accident and suddenly he came to New Testament pages. और यीशु मसीह कोई ऐसा आकस्मिक रूप से अचानक से नए नियम के पन्नों में हाजिर नहीं हुआ। It was full of prophecy. Even from the book of Genesis, we read about coming of the Lord Jesus Christ and the prophecies from even Genesis 3:15. और हम देखते हैं कि उसके लिए जो भविष्यवाणियां हैं पहले से ही उसके आगमन के विषय में की गई थी, यहाँ तक कि उत्पत्ति अध्याय 3:15 वचन में भी उसके विषय में हम भविष्यवाणी को देखते हैं। Now, verse 14 speaks about his head. और 14वां वचन उसके सिर के विषय में बात करता है। His head and his hair were white like wool. उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। His head and hair were white like wool. उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वाले वरन पाले के समान उज्जवल थे। Oh, you can't see even a block spot there or block dot there, but it's white and as white as snow. इसका मतलब ये है कि उसके सिर पर या उसके बाल पर या उस पर इस प्रकार का कोई दाग धब्बे नहीं दिखते थे, लेकिन वो जो दिखता था वो सर से लेके बाल तक श्वेत ऊन के समान वरन पाले के समान उज्जवल दिखता था। No, that speaks about his purity. ये उसके पवित्रता को, उसकी शुद्धता को दर्शाता है। He is pure even in his thought life. वो अपने विचारों के जीवन में भी वह शुद्ध था। And then he was pure not only in actions but even in the inner being of thought life. केवल उसके कार्य ही पवित्र नहीं थे, लेकिन उसका जो आंतरिक जीवन था उसमें भी वो पवित्र था। Sometimes we try to stress in our thought life because demon wants to make our thought life as a battlefield. कि कई बार हम अपने विचारों में काफी गड़बड़ी को देखते हैं और शैतान जो है हमारे विचारों में जो है एक युद्ध छेड़ता है और हमसे युद्ध करवाना चाहता है। Satan tries to our thought life and make our thought life as unholy and contaminated. और शैतान क्या करता है, हमारे विचारों को दूषित करता है और हमारे जीवन को एक अशुद्धता का जीवन के रूप में वो तैयार करने की कोशिश करता है। But we read about Christ who is pure in his thought life. लेकिन हम यहाँ पे मसीह के विषय में देखते हैं जो अपने विचारों के जीवन में भी शुद्ध है या पवित्र है। Now many come to us for prayer saying, please pray for my thought life because I need purity in my thought life. कई लोग हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें क्योंकि हमारे विचारों का जीवन अशुद्ध है, हम चाहते हैं कि हमारे विचारों का जीवन शुद्ध हो। Beloved, our thought life need to be pure before God and we need to glorify the name of God through our purity of mind, purity of thoughts. प्रियो, हमारा विचारों का जो जीवन है परमेश्वर के सामने में शुद्ध होना चाहिए और अब अपने मन में और अपने विचारों में हमें शुद्धता रखनी है। So may God help us to be pure as possible for His glory. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जितना भरसक संभव हो सके हम अपने विचारों के जीवन में पवित्र हो। Peter is writing the same thing in his epistle. और वो पत्री में इस प्रकार से कहता है। First Peter, first chapter. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय। In that he is writing about our thought life and purity of life. वहां पे विचारों में पवित्रता और पवित्रता के जीवन के विषय में लिखा हुआ है। Let's go to first chapter verse 13.
और अध्याय 1 और उसका 13 वचन हम देखते हैं। It says, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। Here we read that we have to gird up the loins of our mind. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि हमने अपनी बुद्धि की कमर बांधना है। How about us today? आज हम कैसे हैं? Our mind is pure for God's glory, or we are disturbed in our mind. क्या हमारी मन की अवस्था परमेश्वर के प्रति पवित्र है या हम अपने मन में कुछ परेशानी को इस समय में देखते हैं? Verse 14 says, और 14 वचन इस प्रकार से कहता है, 1 Peter, 1st chapter, verse 14 says, as obedient children, not fashioning yourself according to the former lusts in your ignorance. और पहला पत्रस अध्याय 1 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। So we need to be obedient children. और हमने आज्ञाकारी बालक बनना है And then glorify the name of God through the purity of life. और अपने जीवन की शुद्धता के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। Verse 15 says, 15 वचन आगे कहता है, 1 Peter, 1st chapter, verse 15, it says, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। What is the pattern here? यहाँ पे क्या प्रक्रिया दी गई है? The pattern here is God himself, Jesus himself is holy. That is the reason we need to be holy for God's glory. हमें क्यों पवित्र होना है? क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है और पुत्र परमेश्वर यीशु पवित्र है। He will never expect us being something else and expecting us to be perfect. और वो कभी भी ऐसा हमसे नहीं चाहेगा कि वो कुछ और है और हम कुछ और बने, वो ऐसा नहीं चाहेगा। He is holy, that is why he is expecting us to be holy for God's glory. क्योंकि वह पवित्र है, इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमसे अपेक्षा करता है कि हम पवित्र बने। We need a revival that we may become holy right in our thoughtful life also. और इसीलिए हमारे पास वो एक अंदर से जनजागृति होनी चाहिए कि हमें अपने विचारों के जीवन में भी पवित्र होना है। And then verse 16 says, और 16वां वचन आगे इस प्रकार से कहता है, 1 Peter, 1st chapter, verse 16. Because it is written, be holy, for I am holy. क्योंकि पहला पत्रस अध्याय 1 16 वचन में आगे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Throughout the Bible, we meet our God as the holy God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम हमारे परमेश्वर के साथ जो मुलाकात करते हैं, एक पवित्र परमेश्वर के रूप में हम उससे मिलते हैं। Even in the last book of the Bible, we meet Jesus as holy in his thought life. यहाँ तक कि हम आखिरी जो पुस्तक इस बाइबल की है, उसमें भी हम हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के साथ जब हम मुलाकात करते हैं, तो उसके विचारों के जीवन में हम उसे पवित्र ही पाते हैं। And definitely when we live a holy life, we definitely will influence the people's life in the world. और प्रियो, जब हम
अपना जीवन पवित्रता का जीवन जीते हैं तो निश्चित ही हम हमारे इस सांसारिक जीवन में एक लोगों के जीवन में प्रभाव को डालते हैं। Now, if we go to again 14th verse, फिर से यदि हम प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 14वें वचन में जाए, it says, his head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। How are his eyes? कैसी थी उसकी आंखें? His eyes were as fiery dots. उसकी आंखें जो थी आग की ज्वाला के समान थी। No, any work in the world, और संसार में जो भी हम काम देखते हैं, any ministry in the world, और कोई भी सेवकाई हम इस संसार में जब देखते हैं, if you read in 1 Corinthians 3rd chapter verse 13, और जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसके 13वें वचन में देखते हैं, first chapter, the 3rd chapter verse 13, it says, और 3 अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों के, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। So his fiery eyes definitely will test our work. उसकी जो ज्वाला में आंख है वो निश्चित ही हमारे काम को परखेगी। Yes, in the Gospels we read that Jesus was compassionate whenever he saw the multitudes. और हम सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु मसीह जब भी भीड़ को देखता था तो वह तरस से भर जाता था। If you see in Matthew 9:35 onwards, we read that he saw the multitudes and he was moved with compassion. और मत्ती के सुसमाचार के 90 अध्याय के 35 वचन से जब हम आगे देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तब वह तरस, उनको देखकर वह तरस से भर गया। He did a holistic ministry, healed the people, he casted out every disease, he casted out every evil spirit, and he did mighty work and holistic work. But still, he saw the multitudes. When he saw the multitudes, he was moved with compassion. उसने सर्वांगीण सेवा की, उसमें उसने दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाया, उसने लोगों को चंगा किया, उसने आश्चर्य कर्म किए, कई बड़े बड़े काम किया, लेकिन जब उसने भीड़ को देखा तो उसका मन तरस से भर उठा। And then he says to his disciples, truly harvest is plenteous and laborers are few. That is the reason you have to pray that God may send laborers into his field. और फिर वह अपने चेलों से इस प्रकार कहता है कि देखो फसल पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। No, only a prayer can raise up true laborers of Christ. और केवल प्रार्थना ही है जो सच्चे काम करने वालों को, मजदूरों को भेज सकता है मसीह के लिए। Who is the true laborer?
कौन है सच्चे मजदूर? A true laborer is under the sun working whole day from morning till evening, sweating, and then bearing any heat of the day. सच्चे मजदूर वो होते हैं जो दिन की कड़ी धूप में वह खेत में पसीना बहाकर काम करते हैं ताकि वह अपनी फसल को प्राप्त करने पाए। So that is the reason we need to be true laborers and we need to pray for the true laborers. और इसीलिए जरूरी है कि हमने वो सच्चे मजदूर होने की आवश्यकता है। Otherwise, ministry becomes a living, trying to earn living bread, and then trying to run the ministry. तो सेवकाई इस प्रकार से हो जाएंगी प्रियो कि जस्ट हम अपने आजीविका के लिए एक नौकरी के रूप में सेवकाई को करते हैं, ऐसा हो जाएगा। So his eyes were as a flame of fire which will test anything, any work, any ministry which you are doing. इसका अर्थ ये है कि उसकी आंखें जो आग की ज्वाला के समान है, वो हमारे हर एक काम को, हमारी हर एक सेवकाई को जो हम करते हैं उसको परखेगा। Verse 15 says, 15 वचन इस प्रकार कहता है, and his feet like unto fine brass. और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। That is wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है। His feet were not only in heaven, but he came as a human being and walked on the dusty streets of the earth. और हम देखते हैं कि स्वर्ग में उसके पांव उत्तम पीतल के समान है, लेकिन फिर भी वह इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जब उसने पैर रखा, इस धूल भरी धरती पर जब उसने पैर रखा, ये सचमुच में अद्भुत है। He walked under the scorching sun, though it was burning his feet, and though it was a terrible time to walk, he walked through. और जब इस पृथ्वी पर उस धूप की कड़ी धूप के नीचे जब वह चला, तो सचमुच में एक प्रकार का वो भयानक समय था उसके लिए, लेकिन फिर भी वह उस कड़ी धूप में वह चला। In John's Gospel, 4th chapter, we see Jesus walking and then crossing through Samaria on the heat day. और हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं कि यीशु चलते चलते समारिया में पहुंचा और वह दिन दोपहरी में वहां पे चल कर गया था। He was tired and then he was sitting near the well and then he wanted some rest, but still he is trying to win a person from there and through that person whole Samaria. और चलकर जब वह थक गया तब वह थोड़ी देर विश्राम करना चाहता था, लेकिन विश्राम करने की बजाय उसने एक व्यक्ति की आत्मा को बचाना उसने मुनासिब समझा और उसने समारिया की एक स्त्री का जीवन बदल दिया। Today are you walking through the minds and doing the ministry and suffering for Christ? और आज हम चल चल के सेवकाई कर रहे हैं मसीह के लिए और हम उस पीड़ा को उठा रहे हैं। Everything is recorded and you will be according to your work. और आप जो ये काम मसीह के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये निश्चित ही परखा जाएगा। We'll turn to book of Hebrews 2nd chapter. और हम इब्रानियों उसके दूसरे अध्याय की ओर आते हैं। 2nd chapter verse 18. और 18 वचन। It says, for in that he himself has suffered being tempted, he is able to succor that are tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है।
No, he was walking on the streets of Jerusalem. He was walking through Galilee. He was walking through Samaria and each and every part of the Holy Land. और वह यरूशलेम की सड़कों पर चला, वह गलील की सड़कों पर चला, वह समारिया की सड़कों पर चला, यहाँ तक कि वो पूरे उस क्षेत्र की सड़कों पर उसने चला। He was hungry and then he was also thirsty. वह भूखा भी था और साथ ही साथ वो प्यासा भी था। So what you are going through is not new to Jesus. He went through all this and he knows what you are going through, and he will definitely stand with you in your struggles. और आप इस समय में जिस परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, यीशु उससे अनभिज्ञ नहीं है और वो निश्चित ही इस समय में आपके साथ खड़ा रहेगा और उससे आपको निकलने में सहायता करेगा। He will be partner in your temptation and he will help you to overcome the temptation. और जब आप परीक्षा में होते हैं उस समय में वह आपका सहभागी होगा और आपकी सहायता करेगा ताकि आप उस परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करें। He will definitely give you strength, weak and humble, and when you are thirsty, he understands your problem. When you are hungry, definitely God meets every need in your life. और जब आप कमजोर होते हैं वह आपकी ताकत होगा और जब आपकी जो भी जरूरत है वो निश्चित ही उसको पूरी करने के लिए आपका प्रयोजन करता होगा। There are many people who say, "No, nobody can understand my situation. I am going through tough time. I am going through difficult times, and nobody helps us." और कई लोग ऐसा प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं जिस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ, जिस परिस्थिति से मैं जा रहा हूँ प्रभु, उससे कोई नहीं समझता प्रभु जी और कोई प्रभु जी उसमें सहायता नहीं करता। My elders are not able to understand, my pastor is not able to understand, my church is not able to understand my problems, and nobody is there to understand my problems. मेरी समस्या को ना मेरा बड़ा बेटा समझता है, ना पास्टर समझते, ना कलीसिया के लोग समझते हैं, कोई भी मेरी समस्या को नहीं समझ सकता प्रभु, मेरी परेशानी को। Beloved, Jesus is right there to stand with you and then understand your problem and then try to give you real help in the time of temptation. मेरे प्रियो, जब आप परीक्षा में होते हैं वो आपके साथ खड़ा है और वो आपकी सहायता कर सकता है ताकि आप परीक्षा के ऊपर में जय प्राप्त करें। Be assured that he is standing with you and he is partnering with you. He will give you strength and he will give you new wisdom, and then he will fill you with a new understanding. प्रियो, इस बात पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि वह आपके साथ खड़ा है। आपके परीक्षा के समय में वो उस समय में आपको नई बुद्धि देगा, नई समझ देगा ताकि आप उसमें से निकल पाए। Let's go back to first chapter of Revelation, verse 15. और हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके 15 वचन की ओर चले। It says, and his feet like unto fine brass, as if they burned in furnace. और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। No, his feet were like brass, as if they were burnt in furnace. और उसके जो शब्द थे मेरे प्रियो, वो मानो भट्टी में तपाए गए हो इस प्रकार से थे। You know, experience of furnace is definitely there for every believer. और अनुभव है वो हर एक विश्वासी के जीवन में जरूरी होता है। If you read First Peter, यदि आप पहला पत्रस पढ़े, first chapter, अध्याय 1, verse 6, it says about experience of furnace. और छठे वचन में भट्टी का अनुभव वहां पे आपको देखने को मिलता है।
What is that? That let us read. Wherein, 1 Peter, 1st chapter, verse 6. Yes. Wherein Please. is choice through now, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। There is not even one temptation or one kind of temptation. यहाँ पे केवल एक परीक्षा या एक प्रकार की परीक्षा के विषय में बात नहीं की गई है। Here, this verse says manifold temptation. यहाँ पे लिखा हुआ है नाना प्रकार की परीक्षा, Different kinds of temptation. अलग अलग प्रकार की परीक्षा है। One temptation is over, next is ready. यदि एक परीक्षा के ऊपर जय पाई है तो दूसरी परीक्षा तैयार है। That is so. इसलिए वो कहता है You should be ready to face any kind of temptation, any kind of temptation. इसलिए वो यहाँ पे कहता है नाना प्रकार की परीक्षा। So, being a soldier, be ready to face any एक kind of सैनिक होने के नाते एक सैनिक होने के नाते हमने हर एक उन तीरों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। Here we say that many temptations and different kinds of temptations are coming. So, verse 7 says, that the pearl of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. जिस प्रकार से वो यहाँ पे नाना प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परीक्षा के विषय में बात करता है, तो वो 7वें वचन इस प्रकार से कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। Are you going through financial crisis now? क्या आप आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं क्या? Are you going through misunderstandings and relational problems in your family? क्या आप अलग अलग प्रकार की परेशानियों का या दुखों का सामना कर रहे हैं क्या? Are you problems in the church? क्या आपने कलीसिया में किसी प्रकार की परीक्षा का सामना है किया? Everything is definitely without the knowledge of God. हर एक दुख जो आप सहन करते हैं, ये परमेश्वर के बिना जाने नहीं हो सकता। Everything which is allowed never tempt us, certainly tempt us. और जो भी हमारे लिए परीक्षा के रूप में रखा जाता है या हमें वो परीक्षा में डालते हैं, It says in Matthew 4:4 that he is the tempter. और हम यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 4 के 4 वचन में देखते हैं उस परीक्षा लेने वाले के विषय में। Once I visited a house. एक बार मैं एक घर में मुलाकात करने गया। Sister was saying, please pray for me because I am terrible fever and then body ache. Sir, voice is not clear. Can you repeat? One sister was saying, please pray for me and I am having body ache and fever. और वहां पे एक बहन कहती हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें क्योंकि मुझे बुखार है और मेरे शरीर में दर्द है। और हमने घुटने टेक की प्रार्थना की।
Then evil spirit, बीमारी के लिए प्रार्थना की and then she was possessed with evil spirit. और वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। So I was surprised. What is this? She is a good believer. She has taken baptism, and then she is following the Lord. She is praying, and then why this evil spirit has come into this? और मेरे मन में एक विचार आया कि ऐसा कैसे हुआ, एक उद्धार पाई हुई, बपतिस्मा ली हुई व्यक्ति के जीवन में ऐसा कैसे हुआ? Then I asked that spirit, why did you, knowing that this is a good believer, and why did you come and enter into this body? और फिर मैंने उस दुष्ट आत्मा से पूछा कि ये विश्वासी है, तू इसके शरीर में कैसे क्या प्रवेश करने पड़ी? And the spirit started saying, yes, yes, I know that she is a good believer, praying more and more. और हाँ, मैं जानती हूँ कि अवश्य विश्वासी है और अधिक से अधिक प्रार्थना करती है। And then I asked, what is your name? I asked the spirit, what is your name? तो मैं दुष्ट आत्मा से पूछा कि तेरा नाम क्या है? Spirit was saying, you are carrying Bible everywhere, and you are preaching the gospel, and you are teaching the Bible. Don't you know my name? My name is already in the Bible. और वो मुझसे कहने लगी, तू बाइबल पढ़ते हो, तुम ये प्रचार करते हो, क्या तुमको मेरा नाम नहीं मालूम? बाइबल में मेरा नाम लिखा है। Then mouth and tell your name. और मैंने कहा कि अपना मुंह खोल और मुझे तेरा नाम बता। Then it said, my name. Pardon me? My name. My name is? Tempter. हाँ, मेरा नाम परीक्षा लेने वाला है। In Matthew 4:4 we read this name. Then the tempter came to Jesus. और हम मत्ती 4 अध्याय के 4 वचन में देखते हैं कि परीक्षा लेने वाला यीशु के पास आया। So he is a tempter. He will not leave anyone, believer or non-believer, and then try to tempt us. And we need to be very, very sober and careful about the attacks of evil one. और इसीलिए परीक्षा लेने वाला वो विश्वासियों को भी के पास भी आता है और विश्वासियों के भी अविश्वासियों के पास भी आता है। इसीलिए हमने बहुत ही सतर्क और बहुत ही सावधान रहना है कि किस प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आ सकती है। If you are not really sober, definitely enemy will defeat us. यदि हम सचेत नहीं रहेंगे तो निश्चित ही वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। That is the reason you need to be a person always sober, watchful, and then try to overcome everything. और इसीलिए हमने वो व्यक्ति होना है जो साधारण हो, वह सचेत हो और वह परमेश्वर के लिए जीने वाला व्यक्ति हो। God is definitely with you in every situation. He stands with you, but we need to be careful to fight against satanic forces. परमेश्वर निश्चित ही हमारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार है, लेकिन हमने बहुत ही सचेत रहकर, सावधान रहकर उस परीक्षा का सामना करना है। Whatever the problem you have, definitely there is solution in Jesus Christ. आपके जीवन में जो कोई भी परेशानी है, परमेश्वर आपके साथ है और तुम उसके ऊपर जय पाओगे। So in verse 15 of Revelation. और प्रकाशित वाक्य का 15 वचन देखते हैं, पहले अध्याय का। You know, his feet in a furnace. और उसके पांव मानो भट्टी के समान तपाए गए थे, गए हो। And then next line says in the और आगे वचन कहता है,
and his voice as a many waters. और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। No, when God speaks, that is the end, and then you cannot stand against it saying, no, I will not obey you. और जब परमेश्वर बातें करता है तो हम उसके विरुद्ध में आकर ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। His voice as the sound of many waters. क्योंकि उसका जो शब्द है बहुत जल के शब्द के समान है। You know, last year we had flood in our place. Pardon me, sir. Last year we had floods in our place. हम अपने स्थान में जब थे, Last year there were flood, and then lot of houses completely drowned, and then many small villages were drowned. और पिछले साल हमने देखा कि वहां पे छोटे छोटे गांव में हम गए। When nobody can stand against it because the water hitting from every corner. और पिछले साल ऐसा हुआ कि पूरा हमारे जो एरियाज थे, हमारे जो क्षेत्र थे, वो हर जगह से पानी से भर चुके थे, इसलिए कोई यहाँ वहां भी नहीं जा सकता था। So here his voice is like sound of waters. और यहाँ पे उसका जो शब्द था बहुत जल के शब्द के समान था। It's not little water, but as if a whole thing is drowned and you can't do anything about it. और थोड़ा सा पानी नहीं था, लेकिन लबालब पानी था, और उस पानी में आप और कुछ भी नहीं कर सकते। Jesus' voice is that vehement and that powerful. और मेरे प्रियो, यीशु का जो वचन है इस तरीके से है और इतना सामर्थ्य, इतना प्रबल है। If you read Genesis first chapter, God spoke and it is established. और यदि आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और सब कुछ He said, स्थापित let there be light, and light was established. उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। And he said that earth out of the waters, and earth came up. और उसने कहा जल में से एक सूखी भूमि तैयार हो, और वहां पे सूखी भूमि तैयार हो। So his voice is so powerful that it can accomplish greater things and mighty things. और उसका शब्द इतना सामर्थी है कि वो बड़े बड़े और अद्भुत कामों को प्रकट करता है या पूरा करता है। We read about in Gospels, हम सुसमाचार में a पढ़ते हैं centurion coming to Jesus saying, Lord, let one word you speak and my daughter will be all right. और सूबेदार यीशु के पास जाके कहता है कि हे प्रभु, तू केवल एक ही शब्द कह दे और मेरी जो बेटी है वो चंगी हो जाएगी। That is the power in his word. ये उसके शब्दों में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। In Psalm 107, और भजन 107 में verse 20, it says, he sent his word and healed people. और 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपना वचन भेज कर अपने लोगों को चंगा किया। Power in the voice of God or in the word of God. और परमेश्वर के आवाज में और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। His voice was like sound of many waters. और उसका जो शब्द है बहुत जल के शब्द के समान है। You take time to hear his voice. आज आप समय लीजिए उसकी आवाज को Every सुनने के day लिए। do you take
take time to spend in the Word of God to hear His voice? क्या आप हर दिन उसके वचन में उसकी आवाज सुनने के लिए समय बिता In रहे the हैं क्या? world, we hear so many sounds in the world, but do you hear sound of voice of God every day? संसार में हम हर प्रकार की आवाजों को सुनते हैं, लेकिन क्या हम इन आवाजों के बीच में परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हर दिन समय निकालते हैं क्या? Then verse 16 says, इस 16वां वचन इस प्रकार कहता है, and he had in his right hand 7 stars. वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। Well, what is this 7 stars? We will read and we will try to meditate and then know the meaning of 7 stars in the next few verses. और आगे के वचनों में हम ये जो 7 तारे क्या है और इसका क्या अर्थ है, इसके विषय में हम देखेंगे और सीखेंगे। Yes, and out of his mouth went a sharp two-edged sword. और आगे कहता है उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। Sharp two-edged sword. तेज 2-धारी तलवार। So there is a sword sharper in both. और एक जो तलवार है वो 2-धारी तलवार है। If you read Hebrews chapter 12, यदि आप इब्रानियों अध्याय 4 उसका 12 वचन पढ़ेंगे, we read about this sharp. यहाँ पे हम उस 2-धारी तलवार के विषय में पढ़ते हैं। What does it say? What does it do? ये किसको, इसका अर्थ क्या है? And it divides even the imagination. और वो उसके वचन के विषय में बताता है जो अलौकिक है, और वो जो वचन हमारी कल्पना से बाहर है उसके विषय में बताता है। 4th chapter verse 12. We'll read Yes. it. It is very, very nice. For the क्योंकि word of, परमेश्वर का वचन जीवित, yes. for the word of God is and powerful and sharper than any two-edged sword. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। It is piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। You see, dividing soul and और यहाँ पे प्राण और आत्मा को छेदने के विषय में, अलग करने के विषय में लिखा है। but the word of God divides both soul and spirit also. लेकिन परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा दोनों को अलग करता है। And it also divides joint and marrow. और उसके साथ साथ वह गांठ गांठ और गूदे गूदे को भी अलग करता है। And it is also a discerner of the thoughts and intents of the heart. और उसके साथ ही साथ वह मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। Saying the word of God is like it can touch and search our thoughts and our desires. यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे मन की भावनाओं और विचारों को खोज कर उसको जांचता है। So Jesus' voice is like that. और यीशु का जो शब्द है इस प्रकार का है। And his mouth was with the sword of the spirit, two-edged sword of the spirit. और उसके मुख के से
तेज दो धारी तलवार निकलती है। 16th verse again. और 16वां वचन आगे फिर से। Revelation 1:16. It says, and his countenance was as the sun shineth in his strength. उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। What is it, beloved? We can't compare his countenance with anything in the world. इसका मतलब ये है कि संसार में हम किसी और तेज से उसकी तुलना नहीं कर सकते। It's incomparable, Jesus. वह अतुलनीय यीशु है। He is definitely wonderful and he is supreme in the whole world. और वो पूरे संसार में वह खास है और वह विशेष है। We can't compare with any human. और किसी इंसान से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। Now let's go to 17th verse. अब हम 17वें वचन की ओर जाते हैं। It says, and when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा। See, after seeing such a great Jesus Christ, और अद्भुत रीति से यीशु को देखने के बाद the response is he fell down like a dead. तो इसका उसने प्रति उत्तर कैसे दिया? वह उसके सामने मुर्दों सा गिर पड़ा, उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। He was feeling there is no life and strength in me. वो इस प्रकार से महसूस करने लगा कि उसके शरीर में कोई जीवन और कोई ताकत ही नहीं रही। Right, and then he is like a dead person in front of Jesus. और वह यीशु के सामने में ऐसा गिर पड़ा जैसे कि उसके शरीर में कोई जान ही ना And हो। it says, he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. फिर आगे उस प्रकार से कहता है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम। Wonderful. Seeing his right hand is more powerful hand, and then many people use only right hand for any hard work. और बहुत ही अद्भुत है, उसने अपना दाहिना हाथ का होता है ताकत, शक्तिशाली हाथ या सामर्थ्य हाथ। कई लोग अपने काम को, अधिकतर काम को करने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते So the हैं। Lord is stretching his right hand and then touching this John for his glory. और परमेश्वर अपना दाहिना हाथ यूहन्ना के ऊपर रखता है। And then he says, fear not, for I am the first and the last. और फिर वो ऐसा कहता है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। He is the first and the last. वही पहला और वही अंतिम है। You may say, why am I in this world? आप कहेंगे कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? Why I was born on this earth? मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ? You may not know why you are born in this world. आप नहीं जान पाएंगे कि आप इस संसार में क्यों जन्मे। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है in Romans 14th chapter, whatever we do it for God's glory, whether you are eating or fasting or whatever you are doing, it is for the glory of God. रोमियो की पत्री अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम खाए या चाहे पिए, हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। So he is the first and last of your life, and then he knows why you are created. He has a purpose for your life, and he is going to use you for his glory.
और वही आपके जीवन का प्रथम है, वही आपके जीवन का अंतिम है। और उसने आपको जो चुना है, निश्चित ही एक उद्देश्य के साथ चुना है, और वो आपका इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए करेगा। Now, verse 18, 18 वचन, first chapter of Revelation, verse 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 18 वचन। It says, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive for evermore. Amen. And have not have the keys of hell and of death. और आगे के वचन में कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। You know, many people or even Romans thought that he died, so it is finished. और कई लोग ऐसा सोचते, यहाँ तक कि रोमी लोग भी सोच रहे थे कि वो मर गया, बस सब समाप्त हो गया। No, Bible says, I am the one who liveth. लेकिन बाइबल कहती है कि नहीं, मैं हूँ जो युगानुयुग जीवता हूँ। And he is living from the dead. और वह मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। You know, in Genesis we read about Hagar. और हम उत्पत्ति में हाजिरा के विषय में पढ़ते हैं। At one time Hagar thought that everything in life is over. एक समय में हाजिरा ने इस प्रकार से सोचा कि अब जीवन पूर्ण रीति से समाप्त हो गया। But beloved, there itself God appears and starts a new start in her life. लेकिन मेरे प्रियो, स्वयं परमेश्वर साक्षात्कार रूप से उसके सामने में प्रकट हुआ और वहां से उसके जीवन की नई शुरुआत हुई। Yeah, many situations may think and may cause us to think that everything is over, now no other way out. कई परिस्थितियां, समस्याएं हमको ये सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं कि अब कोई रास्ता नहीं निकल सकता। But here is the Lord saying, I am that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. लेकिन यहाँ पे प्रभु कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। Amen. Amen. Then it says, and have the keys to hell and of death. और फिर आगे वो कहता है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। He is having keys to death and hell. उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। You know, physical death, every and it is very bitter to taste. और शारीरिक जो मृत्यु है वह हर एक के लिए है, और उसका जो स्वाद है वो बहुत ही कड़वा है। When you go and when you make a loss, and when you lose someone who is very dear to you, you can't forget for many days. The bitter taste will be there in the heart. और जब आप किसी प्रकार की पीड़ा में होते हैं, या आपका कोई प्रियजन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या कुछ ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो वो जो घटनाएं हैं वह कड़वी होती है और उसे आसानी से भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, He is living and then He is alive. He takes control of your life and my life. वो मर गया था और अब वो देख वो युगानुयुग जीवता है, और वो हमारे मेरे और आपके जीवन के ऊपर वह कार्य करता है। In every situation, you cannot understand, the Lord is there to stand with you. हम हर परिस्थिति को नहीं समझ सकते, लेकिन उस समय में निश्चित ही प्रभु हमारे साथ होता है। Let us thank God and commit our lives once again into the hands of God. और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और फिर से अपना जीवन एक बार प्रभु के हाथ में समर्पित करें। Let's give ourselves into the hands.
हम अपने स्वयं के जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। Thank you for your gracious hand which led us up to now. Thank you for speaking to each of us. प्रभु, इस समय तक आपका अनुग्रह कर हाथ हम सब पर रहा और तुरंत लगातार हमसे बातचीत करता रहा। Continue to lead us and glorify. सहायता कर प्रभु जी कि तेरी अगुवाई में मिले और प्रभु जी हम तुझमें बढ़े। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. So, without wasting time, we are moving to the next class. So, over to you, Pastor Newton. You can take over.